عزیزوں، آج شام کو ہمارے خداوند کی میز ہمارے درمیان ہے، اور خداوند کی میز میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے ہم خدا کے کلام میں سے کچھ باتیں دیکھیں گے، اور اس کے بعد مناسب طور پر ہم ہمارے خداوند کی میز میں ہمارا ہاتھ ڈالیں گے اور برکت حاصل کریں گے۔ آج شام کو ہم یہاں برکت حاصل کرنے کے لیے موجود ہیں اور لعنت حاصل کرنے کے لیے نہیں۔ اگر ہم نامناسب طور پر ہمارے خدا کی میز میں ہاتھ ڈالیں گے تو ہم برکت نہیں بلکہ لعنت حاصل کریں گے، لیکن ہمارے خدا کی چاہت ہے اور اس کی مرضی یہ ہے کہ ہم اس کے پاس آئیں اور اس کے پاس آ کر برکت حاصل کریں۔ اسی لیے عزیزوں، ہم خدا کی میز میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے ہم خدا سے دعا کریں گے، درخواست کریں گے، منت کریں گے، تاکہ اس کی میز میں ہاتھ ڈالنا ہمارے لیے برکت کا باعث بن جائے۔ چلیے ہم دعا مانگیں گے۔ اے ہمارے آسمانی باپ، ہمارے جان آفرین، ہمارے خداوند، اور ایک بار آپ کے بیٹے یشوع کے خون کے چھڑکاؤ کے نیچے آتے ہوئے آپ کی مقدس حضور میں ہم داخل ہوتے ہیں۔ خداوند، آج کے اس روز کو لے کر ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور ایک بار آپ کی عبادت کرتے ہیں، آپ کی مدد سرائی گاتے ہیں، آپ کا شکر ادا کرتے ہیں، کیونکہ آپ ہمارے زندہ خدا ہیں۔ آپ زندہ ہیں اور زندگی آپ کی ہے، بقا آپ کی ہے، ہمیشہ کی زندگی آپ کی ہے، اور بقا کو اور ہمیشہ کی زندگی کو آپ نے ظاہر کیا اور ظہور میں لایا آپ کے بیٹے یشوع کے جی اٹھنے سے، مردوں میں سے ان کے پھر سے جی اٹھنے سے اور ان کی قیامت سے ہمیں آپ نے ہمارے واسطے ہمیشہ کی زندگی کو ظہور میں لایا۔ ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اس دنیا میں ایسے کوئی نہیں ہے خداوند جو اس موت سے بچ کر باہر نکل سکے، لیکن آپ نے موت کو اور گور کو، قبر کو آپ نے جیت کر باہر نکلا، اور ہمارے خداوند آپ نے فتح مند ہو کر، فاتح بن کر اس دنیا میں ہمیشہ کی زندگی کو ظہور میں لایا ہے۔ اس لیے ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور آج شام کو خداوند ہم آپ کی میز میں ہاتھ ڈالنے والے ہیں، اور آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ ہم پر رحم کریں اور آپ کے کلام میں سے ہم سے بات کریں، تاکہ لائق طور میں ہم آپ کی میز میں ہاتھ ڈال سکیں۔ خداوند، ہم اپنے آپ کو آپ کے ہاتھوں میں ڈالتے ہوئے، اور مجھے بھی خداوند میں خود آپ کے ہاتھوں میں ڈالتا ہوں، اور آپ سے التماس کرتا ہوں کہ آپ مجھ پر رحم کریں اور مجھے آپ کے صلیب کے پیچھے ڈھک کر، چھپا کر، آپ کے تخت پر سے آپ ہی ہم سے گفتگو کریں، کلام ہم پر نازل فرمائیں، تاکہ خداوند آپ کے کلام کو لے کر ہماری زندگیوں کو سدھار کر ہم نیک طور پر، لائق طور پر آپ کی میز میں ہاتھ ڈالیں اور آپ سے برکت آج شام کو حاصل کر پائیں۔ یہ چھوٹی سی دعا ہمارے خداوند اور منجی یشوع کے مقدس نام سے مانگتے ہیں، سن کر قبول فرمائیں، آمین۔ عزیزوں، آج ہمارے لیے بہت خوشی کا دن ہے، کیونکہ ہمارے خداوند یشوع کے مردوں میں سے جی اٹھنے کا دن ہے۔ اس تمام دنیا میں، ساری کائنات میں ایسا کوئی بھی شخص نہیں ہے جو مردوں میں سے پھر سے واپس آیا ہے، پھر سے جی اٹھا ہے۔ ہمارے لیے یہ تو بہت خوشی کی بات ہے، خوشی کا دن ہے۔ ہماری زندگیوں میں اب غم کی جگہ نہیں ہے۔ ہماری زندگیوں میں، مستقبل میں، حال میں، ماضی میں، ہماری زندگی میں خوشی ہے، کیونکہ جس دن ہم ہمارے خداوند یشوع پر ایمان لائے ہیں، اس دن سے ہماری زندگیاں خوشنما اور خوشحال بن چکی ہیں۔ عزیزوں، آج شام ہم کلام میں سے کچھ باتیں پڑھیں گے، اور ہم دیکھیں گے کہ ہمارے خداوند نے ہمیں کس طرح کی نجات دی ہے، اور ہماری نجات کی خاصیت کیا ہے، اور نجات دینے میں خداوند یہوہ تعالیٰ کی مرضی کیا ہے، اور ان کا منصوبہ کیا ہے، اور نجات ہم کیسے پا چکے ہیں، اور ہم دعوت بھی دیں گے بعض لوگوں کو، باقی لوگوں کو، کہ یشوع میں ایمان لائیں اور نجات پائیں۔ چلیے ہم پہلے دیکھیں گے کہ ہماری نجات کس طرح کی نجات ہے۔ مزامیر کی کتاب، بک آف سامس، چیپٹر 66 اور آیت نمبر 1 ورس 1، چیپٹر 66 کا ورس 1، سام 66 ورس 1، مزامیر کی کتاب، تہلم کی کتاب، باب نمبر 66 اور آیت نمبر 1۔ اے ساری زمین خدا کے حضور خوشی کا نعرہ مار۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ ہاں، خدا کے حضور
खुशी का नारा मार, उसके नाम के जलाल का गीत गाओ, सिताइश करते हुए उसकी तमजीद करो, उसकी तमजीद करो, उसके नाम के जलाल के गीत गाओ। कौन किसे गाना चाहिए? सारी जमीन को गाना चाहिए, खुदा के हुजूर खुशी का नारा मारना चाहिए। क्यों? क्योंकि खुदा यहोवा ने इंसानों के लिए नजात भेजी है। He has sent his salvation for the people of the world. खुदा ने हमारे वास्ते नजात भेजी है। देखिए मज़ामीर की किताब, तहिल्लिम की किताब चैप्टर 43 और आयत नंबर 4, चैप्टर 43 और वर्स 4। तब मैं खुदा के मज़बे के पास जाऊंगा, खुदा के हुजूर जो मेरी कमाल खुशी है। ए खुदा, मेरे खुदा, मैं सितार बजाकर तेरी सिताइश करूंगा। यहाँ मज़मूर नवीस कहता है कि वो कहता है कि मैं सितार बजाकर तेरी सिताइश करूंगा। क्यों सारी दुनिया को हमारे खुदा के सामने आकर खुदा की सिताइश करनी है? क्यों ये मज़मूर नवीस कहता है कि मैं सितार बजाकर तेरी सिताइश करूंगा? क्यों ऐसा कहता है? क्यों? वजह क्या है? हम देखते हैं वजह ये है कि देखिए साम्स चैप्टर 35 और वर्स 9, साम्स चैप्टर 35, तहिल्लिम की किताब, मज़ामीर की किताब चैप्टर 35 और वर्स 9। वजह क्या है? क्यों बार बार लोग कहते हैं कि हम खुदा की सिताइश करेंगे, खुदा की मदहसराई करेंगे, खुदा की इबादत करेंगे? ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि मेरी जान यहोवा में खुश रहेगी और उसकी नजात से शादमान होगी। शादमानी की वजह क्या है? खुश होने की वजह क्या है? वो वजह है उसकी नजात। हमारे खुदा की नजात की वजह से लोग शादमानी बजा लाते हैं और खुश होते हैं। इसीलिए अजीज़ों, हमें भी खुश होना चाहिए, क्योंकि उसकी नजात से शादमानी होती है और हमें भी शादमानी हो गई है और हमें भी खुशी मिली है और इत्मीनान मिला है और अमन मिला है और शादमानी मिली है। इसीलिए हम भी खुश रहेंगे और उसकी नजात से शादमान हम भी होंगे। अजीज़ों, उसकी नजात को लेकर हम आज खुशी के नारे मारेंगे और उसकी सिताइश करेंगे। क्यों? उसकी नजात को लेकर। और उसकी नजात किस तरह की नजात है? अजीज़ों, ये नजात जो यहोवा ताला ने हमें दी है, ये नजात कोई मामूली आम नजात नहीं है। इस दुनिया में ऐसा कोई भी शख्स नहीं है जो हमें नजात दे सकता है, हमें हमेशा की ज़िंदगी बख्श सकता है, हमें हमेशा का वादा कर सकता है कि उसके पास बका में हम भी शामिल होकर हमेशा की ज़िंदगी में रहेंगे। अजीज़ों, हमारा खुदा हमें हमेशा की ज़िंदगी नजात के तौर पर दिया है और ये हमेशा की ज़िंदगी इस दुनिया में किसी और के पास बिल्कुल नहीं है। देखिए इब्रानियों की किताब बाब नंबर 2, हिब्रूज चैप्टर 2 और आयत नंबर 3। हिब्रूज चैप्टर 2 और आयत नंबर 3। तो इतनी बड़ी नजात से गाफिल रहकर हम क्यों कर बच सकते हैं? क्या लिखा हुआ है? ये नजात किस तरह की नजात है? बड़ी नजात है, ग्रेट या अजीम नजात कह सकते हैं। इसकी अजमत बहुत बड़ी है, ये अजीम नजात है, बड़ी नजात है। और इससे गाफिल रहकर, इस नजात से जो गाफिल रहते हैं वो क्यों कर बच सकते हैं? वो लोग बच नहीं पाएंगे, क्योंकि इतनी बड़ी नजात को, अगर इतनी बड़ी नजात से गाफिल हो जाएंगे तो हलाक हो जाएंगे। अजीज़ों, हम आज खुशी मनाएंगे क्योंकि हमारे खुदा यहोवा की नजात जो मिली है हमें, वो बड़ी नजात है, वो अजीम नजात है। आगे बढ़ेंगे इब्रानियों की किताब, हिब्रूज चैप्टर 5 और वर्स नंबर 10, बाब नंबर 10। हिब्रूज 5:10, इब्रानियों की किताब बाब नंबर 5 का आयत नंबर 10। और उसे खुदा की तरफ से मलिक के सदिक के तौर के सरदार काहिन, आई एम सॉरी,
Hebrews chapter 5 और Hebrews 7:25 7 7:25। इसलिए जो उसके वसीले से खुदा के पास आते हैं वो उन्हें पूरी पूरी नजात दे सकता है, क्योंकि वो उनकी शफाअत के लिए हमेशा जिंदा है। हमारा खुदावंद यीशुआ किस तरह की नजात हमें देते हैं? पूरी पूरी नजात हमें देते हैं। He gives us salvation to the utmost till the end, मतलब मुकम्मल तौर पर कामिल नजात हमारे खुदावंद यीशुआ हमें देते हैं। ये पूरी पूरी नजात है, मुकम्मल नजात है, पूरी नजात, इसे कोई खोट नहीं, कोई कमी नहीं। ये मुकम्मल नजात है, पूरी नजात है। हमें इस तरह की नजात हमारे खुदा ने हमें दी है। और 2 तिमोथी चैप्टर 2 2 तिमोथी चैप्टर 2, तिमोथियुस के नाम पौलुस रसूल का दूसरा खत बाब नंबर 2 और आयत नंबर 10 और आयत नंबर 10। इसी सबब से मैं बरगुज़ीदा लोगों की खातिर सब कुछ सहता हूं, ताकि वो भी उस नजात को जो माशियक यीशुआ में है अब्दी जलाल समेत हासिल करें। किस तरह की नजात है ये? अब्दी जलाल समेत रहने वाली नजात है। इट्स ए ग्लोरियस गॉस्पेल। ये अब्दी जलाल के साथ रहने वाली यानी मिलने वाली नजात है। अब्दी जलाल समेत हासिल होने वाली नजात है। ये हमेशा की जिंदगी है, ये नजात है, अब्दी नजात है, जलाल से भरी हुई नजात है। अजीजों, इस तरह की नजात हमारे खुदा ने हम पर नाजिल की है। लुका की खुशखबरी बाब नंबर 2, लुका की खुशखबरी बाब नंबर 2, लुका की खुशखबरी बाब नंबर 2 और आयत नंबर 30 और 31। चैप्टर 2, लुक्स गॉस्पेल चैप्टर 2 30 and 31 वर्सेस 30 and 31। क्योंकि मेरी आंखों ने तेरी नजात देख ली है, जो तूने सब उम्मतों के रूबरू तैयार की है। ये किस तरह की नजात है? ये इस तरह की नजात है जिसे खुदा ने खुद तैयार की है। ये तैयार की गई नजात है। ये तो कोई आम नजात नहीं है, बल्कि ये खुदा से तैयार की गई नजात है। अजीजों, ये बहुत अजीम बात है, अहमियत की बात है, बहुत बहुत उम्दा बात है। हमें इस बात की गहराई को जानना चाहिए। अगर आप बावर्ची के पास जाएंगे, कोई कुक के पास जाएंगे और कहेंगे कि एक अच्छा सा बिरयानी बना देना, और अगर आप चखेंगे तो आप क्या कहेंगे? ये तो बहुत अच्छा तैयार किया गया है। अजीजों, अगर एक बहुत नाम वाला बावर्ची हो, एक कुक हो, और आप चाहेंगे कि ये बिरयानी हमें उसके हाथों में से खाना है, तो हम क्या करेंगे? हम बहुत आरजू रखेंगे कि मुझे कब मिलेगा मौका उसके हाथ का बिरयानी खाने का, है ना? आरजू रखेंगे, क्योंकि उस बावर्ची का नाम, उस कुक का नाम सुनते ही हमें याद आएगा कि उसका बिरयानी जो उसने तैयार किया है कितना लजीज होगा। अजीजों, अगर एक इंसान के हाथ से बनाया गया खाना हमें इतना लजीज रहता है, और उसके एक इंसान के हाथ से बनाया गया खाने का आरजू हम रखते हैं, तो खुदा से तैयार की गई नजात की चाहत और उस खुदा के हाथ से बनाई गई या तैयार की गई नजात का ख्वाहा हमें और कितना ज़्यादा रहना है। How much more shall we desire the salvation which is prepared by God? खुदा है वो शख्स, खुदा है वो हस्ती जिसने उस नजात को तैयार की है। It's God is a person who had prepared or made this salvation. ये कितनी अजीम बात है, कितनी बड़ी बात है, और कितनी ही
मुकम्मल बात है और बरकत देने वाली बात है, और हमें इस बात को समझना चाहिए कि ये एक मामूली आम इंसान से बनाई गई या तैयार की गई नजात नहीं है, ये खुदा से बनाई गई नजात है। और हम आगे बढ़ेंगे, इस नजात के बारे में हम कुछ बातें देखेंगे और उसके बाद हम खुदा की मेज़ में हाथ डालेंगे। लुक्स गॉस्पेल चैप्टर 1, लूका की खुशखबरी बाब नंबर 1 और वर्स नंबर 77, चैप्टर 1 वर्स 77, ताकि उसकी उम्मत को नजात का इल्म बख्शे जो उनको गुनाहों की मुआफ़ी से हासिल हो। ये नजात जो खुदा ने तैयार की है, ये नजात हासिल होती कैसी है, हमें किस तरीके से हमें उसे हासिल करना है। कि यहाँ लिखा हुआ है कैसे हम हासिल कर सकते हैं, गुनाहों की मुआफ़ी से हासिल हो। अजीज़ों, दुनिया में लोग समझते हैं कि हम नेकोकारी करेंगे, नेकी करेंगे, हमारी मर्जी के मुताबिक हम अच्छी ज़िंदगी जिएंगे, हमें जैसा लगता है कि ये अच्छी चीज़ है, ये अच्छी बात है, इन अच्छाओं का या अच्छाइयों की ज़िंदगी हम जिएंगे और हम खुदा के पास पहुंच जाएंगे। ये लोगों का ख्याल है, लेकिन अव्वल धोखेबाज ख्याल है, ये बिल्कुल धोखेबाज ख्याल है, क्योंकि एक इंसान को तो एक बात अच्छी होती है, दूसरे इंसान को दूसरी बात अच्छी होती है, लेकिन दूसरे इंसान की नजरिए में पहले इंसान की बात बुरी भी हो सकती है। इसीलिए अजीजों, इंसान की नेकोकारी से, इंसान की अच्छे अमल से, नेक अमल से कोई भी इंसान खुदा के पास पहुंच नहीं सकता। इसीलिए हम देखते हैं कलाम में कि नजात हमेशा गुनाहों की मुआफ़ी से ही हासिल होती है, नेकोकारी से नहीं और अच्छे कामों के वसीले से नहीं, लेकिन खुदा ने जो नजात तैयार की है वो सिर्फ और सिर्फ गुनाहों की मुआफ़ी से ही हम हासिल कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, 2 तिमोथी चैप्टर 3 एंड वर्स 14। तिमोथियुस के नाम पौलुस रसूल का दूसरा खत बाब नंबर 3 और आयत नंबर 14, चैप्टर 3 का आयत नंबर 14। मगर तू उन बातों पर जो तूने सीखी थी और जिनका यकीन तुझे दिलाया गया था, यह जानकर कायम रह कि तूने इन्हें किन लोगों से सीखा था। अजीजों, हम पढ़ते हैं कि वर्स 15 भी हम पढ़ेंगे। तू बचपन से उन पाक नविश्तों से वाकिफ है जो तुझे माशियक यीशुआ पर ईमान लाने से नजात हासिल करने के लिए दानाई बख्श सकते हैं। नजात पाने के लिए, नजात हासिल करने के लिए दानाई यानी नजात की दानाई हमें कहाँ से मिलती है, नजात हम कैसे पाएंगे, ये इल्म, ये दानाई हमें कहाँ से मिलती है। यहाँ लिखा हुआ है कि पाक नविश्तों से यानी यहोवा की किताब में से ही, इस किताब में से ही, इन नविश्तों में से ही हमें इल्म या खुदा की नजात हासिल करने की दानाई हासिल होती है। We get the knowledge of the salvation from the scriptures. इस दुनिया की बाकी किताबों में से खुदा तक पहुंचने की दानाई हासिल नहीं होती है। हमें खुदा तक पहुंचने की दानाई सिर्फ और सिर्फ बाइबल में से, किताब मुकद्दस में से ही हासिल होती है। क्यों? क्योंकि देखिए 1 पीटर चैप्टर 1 वर्स 10, पहला पत्रस 1:10, 1 पीटर चैप्टर 1 वर्स 10। इसी नजात की बाबत उन नबियों ने बड़ी तलाश और तहकीक की जिन्होंने उस फजल के बारे में जो तुम पर होने को था नबूवत की। हाँ, इस नजात की बाबत नबियों ने क्या की थी? नबियों ने नबूवत की थी। ये नजात कोई आसमान से यकाएक नीचे गिराई दी गई नजात नहीं है, ये तो
किताब मुकद्दस के नविश्तों में लिखी गई, नबूवतों में दर्ज की गई नजात है। खुदा यहोवा ताला ने अपने बहुत सारे नबियों को इस दुनिया में भेजा और उन्होंने खुदा के कलाम को किताबों में लिख कर, नविश्तों में बंद करके, नविश्तों में लिख कर हमें दी है। उन किताबों को हम तक पहुंचा दी है और उन किताबों को पढ़ने से हमें हासिल होती है दानाई, और उन किताबों में नबूवतों के जरिए से खुदा ने इस नजात को तैयार की है। बहुत सारी नबूवतें हैं यीशुआ हमारे खुदावंद की आमद के बारे में, उनकी पैदाइश के बारे में, उनके सलीब पर मसलूब होने के बारे में, हमारे वास्ते जान देने के बारे में, और मुर्दों में से जी उठने के बारे में, और खुदा की बादशाहत को कायम करने के बारे में, और दूसरी बार हमारे वास्ते यीशुआ आएंगे उसके बारे में, और खुदा की बादशाहत हमेशा के लिए कायम करेंगे उसके बारे में। सारी नबूवतें हैं, पेशिन गोइयां हैं। अजीजों, ये कोई आम नजात नहीं है, ये खुदा से तैयार की गई, नबूवतों समेत तैयार की गई नजात है। 1 पीटर चैप्टर 1 में और आयत नंबर 5 में और एक बात हम पढ़ते हैं, वो तुम्हारे वास्ते जो खुदा की कुदरत से ईमान के वसीले से उस नजात के लिए जो आखिरी वक्त में जाहिर होने को तैयार है, हिफाजत किए जाते हो, आसमान पर महफूज है। क्या लिखा हुआ है? खुदा की कुदरत से ईमान के वसीले से उस नजात के लिए जो आखिरी वक्त में जाहिर होने को तैयार है। हाँ, ये नजात आखिरी वक्त में जाहिर होने के लिए खुदा ने तैयार की थी। खुदा ने खुद इस नजात को तैयार की थी। ये जाहिर करने के वास्ते, खुदा ने इसे जाहिर करने के वास्ते महफूज भी रखा था। लेकिन ये नजात कितनों के लिए है, किसके लिए है? क्या चुनिंदा कुछ लोगों के वास्ते है, या खुदा चाहता है कि सब के सब नजात पाएं? टाइटस चैप्टर 2, तीतुस की किताब बाब नंबर 2 और वर्स 11, 11वीं आयत, टाइटस 2:11, तीतुस की किताब 2 का 11। क्योंकि खुदा का वो फजल जाहिर हुआ है जो सब आदमियों की नजात का बाइस है। क्या कहा गया है यहाँ पे? खुदा का वो फजल जाहिर हुआ है जो सब आदमियों की नजात का बाइस है। ये नजात किसके वास्ते है? सब आदमियों की नजात का बाइस खुदा का रहम नाजिल हुआ है या जाहिर हुआ है, खुदा का फजल जाहिर हुआ है। क्यों? ताकि सब के सब आदमी नजात पाए। सब के वास्ते, दुनिया में जितने भी लोग हैं, खुदा चाहता है, यहोवा ताला चाहता है कि वो सब के सब नजात पाए। अजीजों, सब के सब नजात पाने के वास्ते, सब आदमियों की नजात के वास्ते खुदा ने इस नजात को तैयार किया। कभी कभार हम लोगों को ये कहते सुनते हैं कि खुदा नहीं चाहता कि सबके सब लोग नजात पाएं, दुनिया के सारे लोग नजात पाएं। अजीज़ों, ये कलाम के खिलाफ है। ऐसी बातों को जो कलाम के खिलाफ होते हैं, कलाम के बरखिलाफ होते हैं, उन बातों पर अमल करना या ईमान लाना बहुत ख़तरनाक होता है। अजीज़ों, कलाम बयान करता है कि हमारे खुदा ने अपनी नजात सब आदमियों के लिए तैयार की है। और हम आगे बढ़ेंगे। अमाल की किताब, एक्ट्स, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 15 वर्स 11, अमाल की किताब चैप्टर 15 और वर्स 11, चैप्टर 15 वर्स 11। खुदा ने तो नजात तैयार की है, लेकिन ये नजात हमें मिलती कैसे? हालांकि हमको यकीन है कि जिस तरह वो खुदावंद यीशुआ के फजल ही से नजात पाएंगे, उसी तरह हम भी पाएंगे। क्या लिखा हुआ है? खुदावंद यीशुआ के फजल ही से नजात पाएंगे। नजात हम कैसे पाएंगे? खुदावंद यीशुआ की फजल से हमें नजात हासिल हुई है। लोग कहते हैं कभी कभार कि खुदावंद यीशुआ सिर्फ एक मामूली इंसान है, या मामूली नबी है, या सिर्फ एक खुदा का बंदा है, एक इंसान है जो इस दुनिया में मिट्टी से जैसे लोग पैदा हुए हैं ऐसे ही लोगों के दरमियान वो भी पैदा हो गया, वो तो सिर्फ एक मामूली एक माँ का बेटा है। ना, बिल्कुल नहीं। हम तो खुदावंद यीशुआ की बात जब
جب کرتے ہیں تو ہم یقیناً یہ کہتے ہیں کہ ہمارے خداوند یشوع ایک ماں کا بیٹا نہیں ہے، وہ ایک کنواری کا بیٹا ہے، وہ خدا کا کلام ہے جو ایک عورت کے، ایک کنواری کے بطن میں مجسم ہوا۔ وہ کوئی عام شخص نہیں ہے۔ اس دنیا کے سارے لوگ عام طور پر پیدا ہوئے ہیں، ماں باپ کو پیدا ہوئے ہیں، لیکن خداوند یشوع ہی خدا کا کلام ہے جو ایک باپ کے بغیر ایک کنواری کے بطن میں مجسم ہوا۔ عزیزوں، ایک کلام ایمان لانے کے لائق کا کلام ہے کہ ہمارے خداوند یشوع کے فضل سے ہی ہم نجات پائیں گے۔ ہمارے خداوند یشوع پر جو ایمان لائے گا اس کے فضل سے نجات پائے گا۔ خدا کے فضل سے لوگ نجات پاتے ہیں، لیکن کلام کیا فرماتا ہے؟ یشوع کے فضل سے ہی لوگ نجات پاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کلام خداوند یشوع کو خدا کا درجہ دیتا ہے، یشوع کو اٹھا کر خدا کا برابر کرتا ہے، کیونکہ یشوع ہمارے خداوند، ہمارے خدا یہوہ تعالیٰ کے اکلوتے بیٹے ہیں۔ اسی لیے کلام بیان کرتا ہے، دیکھیے ایکٹس 4:12 میں، اعمال کی کتاب 4:12، ایکٹس 4:12 میں کلام کیا بیان کرتا ہے؟ ہم پڑھیں گے وہاں پہ، اور کسی دوسرے کے وسیلے سے نجات نہیں، کیونکہ آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلے سے ہم نجات پا سکیں۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ ہاں، آسمان کے نیچے، آسمان کے تلے آدمیوں کو اور کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلے سے ہم نجات پا سکیں، صرف اور صرف یشوع ہمارے خداوند کے نام میں ہی ہمیں نجات حاصل ہوتی ہے۔ کوئی یا کسی دوسرے کے وسیلے سے، دوسرے کے نام سے ہمیں نجات نہیں حاصل ہوتی۔ عزیزوں، یاد رکھیں گے، اس زمین پر، اس دنیا میں، پوری کائنات میں خدا تک پہنچانے والا کوئی اور دوسرا نام نہیں ہے، نجات دینے والا اور کوئی دوسرا اس میں مقدس نہیں ہے۔ یشوع کے مقدس نام کے بغیر کسی دوسرے نام سے ہم نجات بالکل نہیں حاصل کر پائیں گے۔ اسی لیے اگر آپ اپنی جان کی نجات چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ خدا کے پاس جائیں، یہوہ تعالیٰ کے پاس جائیں، موت کو پار کر کے مرنے کے بعد یہوہ تعالیٰ کے پاس رہنا چاہتے ہیں، تو واحد راہ، ایک دروازہ ہے، ایک راہ ہے، نجات کی راہ یشوع ہے، اور یشوع کے بغیر کوئی اور دوسرے نام سے ہم نجات نہیں پا سکتے۔ اسی لیے ہم یشوع ہمارے خداوند میں ایمان لائے ہیں، اور اس کے نام میں ہم نے دعا مانگی، معافی مانگی، اور دعا مانگنے سے ہمیں نجات مل گئی ہے۔ دیکھیے اعمال کی کتاب چیپٹر 16:31، ایکٹس آف دی اپوسٹل چیپٹر 16:31، باب نمبر 16 اور آیت نمبر 31۔ ایکٹس 16:31، انہوں نے کہا، خداوند یشوع پر ایمان لا تو تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ نجات کیسا کوئی ایک انسان نجات کیسا پائے گا؟ نجات کیسا پائے گا؟ ہاں، ایمان لانے سے، خداوند یشوع پر ایمان لانے سے نجات پائے گا۔ خداوند یشوع پر ایمان لانے سے نجات پائے گا، کیونکہ آسمان کے تلے، زمین کے اوپر کوئی اور دوسرا نام نہیں جس کے ذریعے سے انسان بچ سکتا ہے آنے والے خدا کے غضب سے، قہر سے، اور خدا کے عذاب سے، اور اس کی سزاؤں سے۔ یہوہ کی سزاؤں سے بچنے کا ایک ہی اور اکیلا واحد راستہ ہے یشوع۔ عزیزوں، اسی لیے اگر آپ یشوع کے نام میں، اگر آپ یشوع کے نام سے دعا کریں گے، یشوع سے مانگیں گے، یشوع میرے نجات دہندہ، اے میرے نجات دہندہ، مجھے معاف کر، مجھے ہمیشہ کی زندگی دے، تو یشوع آپ کو ہمیشہ کی زندگی دے گا۔ صلیب پر جب یشوع جڑ چکے تھے، جب لوگوں نے یشوع کو صلیب پر مصلوب کر دیا، تب یشوع کے داہنے اور بائیں طرف دو ڈاکو تھے، ہے نا۔ ایک ڈاکو نے یشوع سے درخواست کی تھی کہ یشوع، جب آپ کی بادشاہت میں ظاہر ہوں گے
तो मुझे याद फरमाइए। यीशुआ ने उसे कहा, तू आज ही मेरे साथ तू फिरदौस में या परदेश में तू रहेगा। आज ही तू मेरे साथ उस मुकाम में, उस मुकद्दस मुकाम में, खुदा के हुजूर में तो आज ही मेरे साथ रहेगा। अजीजों, ये क्या ही बड़ी बरकत की बात है, ये दिलेरी की बात है, हौसला अफजाई की बात है, यकीन दहानी की बात है कि हम जरूर खुदा के पास हम रहेंगे, उसके पास हम पहुंचेंगे। इसीलिए हमें क्या करना है, हमें इस ईमान पर बरकरार रहना है। और जो लोग अब तक नजात नहीं पाए हैं, उन्हें क्या करना है, यीशुआ के नाम में ईमान लाना है और दुआ मांगनी है, तब वो लोग बच जाएंगे। इसीलिए लिखा हुआ है, उन्होंने कहा, रसूलों ने कहा, खुदावंद यीशुआ पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना नजात पाएगा। अजीजों, अगर ये कलाम जो सुन रहे हैं, आप में से अगर कोई अब तक नजात नहीं पाई है, तो यीशुआ खुदावंद पर ईमान लाइए और यीशुआ के नाम में दुआ मांगिए, यीशुआ से दुआ मांगिए, तो आप नजात पाएंगे और यीशुआ ही के फजल से आप नजात पा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। रोमियो की किताब बाब नंबर 10, रोमन्स चैप्टर 10, रोमियो की किताब बाब नंबर 10, रोमन्स चैप्टर 10 और आयत नंबर 10। रोमन्स चैप्टर 10, रोमियो की किताब बाब नंबर 10 और आयत नंबर 10। क्योंकि रास्तबाजी के लिए ईमान लाना दिल से होता है और नजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है। अजीजों, हम यहाँ एक अहम बात को देख रहे हैं। वो क्या है? रास्तबाजी के लिए ईमान लाना दिल से होता है। खुदा इंसान को रास्तबाज बनाना चाहता है और साथ ही साथ रास्तबाज बनाकर उसे अपने पास ले जाना चाहता है, यानी नजात देना चाहता है। नजात का मतलब क्या है? नजात से मुराद क्या है? नजात से मुराद यह है कि हम इस दुनिया से जो हलाक होने वाली है, जो फना होने वाली है, इस दुनिया से हम बचकर इस दुनिया पर जो खुदा की सज़ा और खुदा का अजाब और खुदा का कहर और खुदा का बहुत बड़ा गुस्सा और गज़ब जो नाजिल होने वाले हैं, उनसे बचकर हम खुदा की बादशाहत में, उसकी मौजूदगी में, उसकी हुजूरी में हमेशा हमेशा के लिए बका के साथ हमेशा की जिंदगी के लिबास पहनकर हमेशा की जिंदगी में दाखिल होकर नाफानी जिंदगी जिएं। अबदुल-आबाद तक हमारे खुदा, सच्चे खुदा जो वहाँ मौजूद है, यहोवा ताला, बाइबल के सारे नबियों का वाहिद खुदा यहोवा ताला के पास हमेशा के लिए, हमारे आसमानी बाप के पास उसकी मोहब्बत में शामिल होकर, शरीक होकर, शिराकत पाकर हम उसके साथ खुशी और खुर्रम से और शादमानी से हमेशा के लिए उसके साथ रहें। यह है नजात। हर किसी को नजात नहीं मिलती, हर कोई को नजात नहीं मिलती। जो चाहते हैं, जो ख्वाहिश रहते हैं, जो ख्वाहा होते हैं, जो खुदा से डरते हैं, सच्ची राह को मुझे दिखा करके खुदा से जो इल्तिमास करते हैं, खुदा से जो मांगते हैं, जो खुदा के पास आकर खुदा से चाहते हैं और दुआ मांगते हैं, अपने आप को हलीम बनाते हैं, अपने आप को पस्त कर लेते हैं, उनको हासिल होती है नजात। और उस नजात का अकेला दरवाज़ा यीशुआ है और उस नजात का अकेला रास्ता और राह यीशुआ है। और यीशुआ की फजल से ही, उसके सलीबी खून में धोने से ही हमें नजात हासिल होती है। अजीजों, इसीलिए यहाँ क्या लिखा हुआ है रोमन्स 10:10, रास्तबाजी के लिए ईमान लाना दिल से होता है और नजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है। लोगों को नजात पाने के लिए क्या करना पड़ता? मुंह से इकरार करना पड़ता। क्या इकरार करना पड़ता? यीशुआ को इकरार करना पड़ता, सारी दुनिया के सामने इकरार करना पड़ता, कबूल करना पड़ता, एतमाद के साथ लोगों के सामने गवाह बनकर खड़ा होना पड़ता कि मैं नजात याफ्ता हूं, मैं खुदावंद यीशुआ में नजात पा चुका हूं, खुदावंद यीशुआ ने मेरे सारे गुनाहों से मुझे नजात दी है,
मुझे नजात के लिबास से मुझे मुलब्बस किया है। यीशुआ मेरा नजात दहिंदा है। सारी दुनिया के सामने दिलेरी से जो खड़े होकर गवाही देता है, उसकी गवाही से यानी लोगों के सामने इकरार जो मुंह से करता है यीशुआ को, वो नजात पाता है। इसीलिए यीशुआ ने कहा कि अगर कोई मुझे लोगों के सामने इनकार करेगा तो मेरे बाप के सामने मैं भी उसे इनकार कर दूंगा। जो लोगों के सामने मेरा इकरार करेगा, मुझे इकरार करेगा, मैं बाप की बादशाहत से जब मैं आऊंगा तो उस बादशाहत में खुदा के सामने, बाप के सामने मैं उसे कबूल करूंगा, इकरार करूंगा। अजीजों, छुपा छुपी नहीं होती नजात में। मैं नजात पा लिया और मैं चुपके डर के चुपके कहीं मैं छुप गया, नहीं, छुपा छुपी नहीं होती नजात में। नजात के लिए अगर जान देनी पड़ती है तो जान देनी पड़ती है, तो पड़ती है, देनी ही पड़ती है। अजीजों, यीशुआ ने कहा जो मेरे वास्ते अपनी जान गवाएगा वो उसे बचा लेगा, वो उसे फिर से हासिल कर लेगा। लेकिन मेरे वास्ते जो जान देने से डरता है, जो अपनी जान बचाना चाहता है, वो अपनी जान गवाएगा। जान वो गवाएगा, हमेशा की सजा वो पाएगा, मतलब दोज़ख में वो चला जाएगा, खुदा की बादशाहत में नहीं आएगा। खुदा की बादशाहत में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इकरार मुंह से करना पड़ेगा। यीशुआ के नाम, यीशुआ नजात दहिंदा होने की बात मुंह से इकरार करना पड़ेगा, गवाह होना पड़ेगा, शहीद होना पड़ेगा, क्योंकि यीशुआ के लिए जान गंवाना, जान फिर से हमेशा की जिंदगी में हासिल करना है। अजीजों, आगे बढ़ेंगे, इसीलिए हम इकरार करेंगे, मुंह खोलकर सारी दुनिया के सामने गवाह बनकर हम इकरार करेंगे। तब हम क्या बनते हैं? ऐसा करने के बाद हम क्या बनते हैं? देखिए इब्रानियों की किताब हिब्रूज चैप्टर 1 और वर्स 14, हिब्रूज चैप्टर 1 वर्स 14, इब्रानियों की किताब बाब नंबर 1 और आयत नंबर 14। क्या वो सब खिदमत गुजार रूहें नहीं जो नजात की मीरास पाने वालों की खातिर खिदमत को भेजी जाती हैं? यहाँ फरिश्तों की बातें लिखी, फरिश्तों के बारे में कुछ बातें लिखी गई हैं और ये बात फरिश्तों के बारे में लिखी गई है। फरिश्ते कौन हैं? फरिश्ते वो हैं, वो रूहें हैं जो नजात की मीरास पाने वालों की खातिर खिदमत करने के वास्ते दुनिया में भेजी जाती हैं, आसमान से, खुदा के पास से। अजीजों, किसके वास्ते, किसके लिए ये फरिश्ते भेजे जाते हैं? नजात की मीरास पाने वालों की खातिर खिदमत करने के वास्ते। किसके वास्ते? नजात की मीरास पाने वालों की खातिर खिदमत करने के लिए। हम कौन हैं? नजात की मीरास पाए सो लोग हैं। हम नजात को मीरास के तौर पर पा चुके हैं। We are the heirs of salvation. We have the inheritance of salvation. We have inherited salvation. यानी खुदा की बादशाहत, the kingdom of God, we have inherited as inheritance. हमें मीरास है, हमें बका में मीरास है, हमें मुस्तकबिल में, हमेशा की जिंदगी में, खुदा की बादशाहत में हमें मीरास है। क्या है वो मीरास? नजात है। Our salvation is the inheritance what God had given us for to acquire and be with. अजीजों, हम नजात को मीरास में पाएंगे। वो हमसे कोई छीन ना लेगा, कोई हमसे वो छीन नहीं सकेगा। वो हमेशा के लिए हमारे साथ रहने वाला मीरास है, रहने वाली नजात है। हम आगे बढ़ेंगे, उसके बाद हम खुदा के पास रहेंगे। लेकिन ये नजात, ये मीरास किसके पास है? देखेंगे जॉन्स गॉस्पेल, यूहन्ना की खुशखबरी चैप्टर 4 और वर्स 22। यूहन्ना की खुशखबरी, जॉन्स गॉस्पेल बाब नंबर 4 और आयत नंबर 22, 4 का 22। तुम जिसे नहीं जानते उसकी परस्तिश करते हो और हम जिसे जानते हैं उसकी परस्तिश करते हैं, क्योंकि नजात यहूदियों में से है। अजीजों, यहाँ एक अहम बात हमें सिखाई गई है, सिखाया जा रहा है। वो बात क्या है? नजात यहूदियों में से ही है।
नजात यहूदियों में से ही है। और एक बार मैं कहूंगा और एक बार मैं पढ़ूंगा, क्योंकि नजात यहूदियों में से ही है। अजीजों, नजात कोई दूसरे कौम से, दूसरी उम्मत से आपको नहीं मिलती। दुनिया में और बहुत सारी उम्मतें हैं, बहुत सारे कबीले हैं, बहुत सारे मुल्के हैं, बहुत तरह के लोग हैं, बहुत तरह के दीन हैं, लेकिन नजात सिर्फ और सिर्फ यहूदियों में से ही होती है, मिलती है। खुदा ने नबुवतों की इस किताब में, यहोवा ताला ने अपनी किताब में, यहोवा की किताब में लिखा गया है, ये बात लिखी गई है, ये बात दुरुस्त तौर पर बताई गई है, बेशक और बिला कोई शक ये बात दुरुस्त तौर पर यहां लिखी गई है कि नजात सिर्फ और सिर्फ यहूदियों में से है। अजीजों, अगर कोई आकर आपसे कहे कि कोई और पर, किसी और पर ईमान लाओ, किसी और कबीले के लोगों पर ईमान लाओ, किसी और मुल्क के लोगों पर ईमान लाओ, किसी और उम्मत के लोगों पर ईमान लाओ, नजात मिलेगा, तो वो सिर्फ और सिर्फ धोखे में है और आपको भी धोखे में खींच कर ले जाना चाह रहा है। अजीजों, आप याद रखें, खुदा का कलाम हमारी नींव है, हमारी बुनियाद है, इस पर हम कायम रहेंगे। हमारा खुदा का कलाम हमारे लिए एक चट्टान है। जो खुदा के कलाम जो चट्टान है, हमारे खुदा के कलाम यहोवा की किताब पर जो अपने आप को, अपनी जिंदगी को तामीर करेगा, वो हमेशा के लिए बरकरार रहेगा। सैलाब आ सकते हैं, आंधियां हो सकती हैं, हवा चढ़ सकता है, पानी पड़ सकता है, बारिश हो सकती है इस इमारत पर, लेकिन ये इमारत गिरती नहीं, क्योंकि ये इमारत, ये मेरी जिंदगी मेरे खुदावंद पर, मेरे खुदावंद यीशुआ पर तामीर की गई है, जो चट्टान जैसा है, जिसका कलाम चट्टान जैसा है। इसीलिए अजीजों, हम याद रखेंगे कि नजात यहूदियों में से है और हमारे खुदावंद यीशुआ इसीलिए यहूदियों में से आया है। ये बात जो लिखी गई है यहाँ पे, यीशुआ ने कही थी कि नजात यहूदियों में से है। इसीलिए हम सही रास्ते पे हैं, सही राह पे चल रहे हैं, हम सही ईमान पे हैं, क्योंकि यीशुआ ने जैसे कहा हम उसे मान लिया है। नजात यहूदियों में से है और यहूदियों में से यीशुआ आया और यीशुआ में ही नजात हमें मिलती है। अजीजों, ये नजात की खुशखबरी है। खुदा कहता है कि तू नजात पा, तू आज ही नजात पा, आज ही तू नजात पा ले, अपने गुनाहों को कबूल कर ले, तू मेरे पास आ जाएगा, मेरी सल्तनत में अब तक तू मेरे साथ रहेगा। ये जमीन पूरी, ये तमाम जमीन ये जल जाएगी। एक दिन आएगा जब खुदा तमाम आसमानों जमीन को वो ढा देगा, वो उनको जला देगा। ये आसमानें और जमीन हलाक हो जाएंगे और ये फना हो जाएंगी और ये पूरी चीजें जल जाएंगी। लेकिन खुदा ने अपने कलाम में, अपने मुकद्दस कलाम में ये वायदा किया है कि मैं एक नया आसमान और एक नई जमीन मैं तेरे लिए बना रहा हूं। उसमें सदाकत कायम रहेगी, उसमें हमेशा की जिंदगी रहेगी। वो बका के साथ शामिल है, बका उसमें मौजूद है, हमेशा की जिंदगी उसमें मौजूद है और तू हमेशा के लिए उसमें रह सकता है। और खुदा की मौजूदगी वहां हमें हमेशा मिलती रहती है और खुदा के हुजूर में वहां हम बसेंगे, रहेंगे। इसीलिए अगर आप में से किसी ने अब तक नजात नहीं पाई है, तो खुदा कहता है कि आज ही तू अपने गुनाहों को तू मान ले, तू कबूल कर। देखिए 2 Corinthians chapter 6 verse 2, 2 Corinthians chapter 6 verse 2, क्योंकि वो फरमाता है, खुदा फरमाता है, मैंने कबूलियत के वक्त तेरी सुन ली और नजात के दिन तेरी मदद की। देखो अब कबूलियत का वक्त है, देखो ये नजात का दिन है। अजीजों, खुदा कहता है कि ये ही कबूलियत का वक्त है। देखो अब कबूलियत का वक्त है, देखो ये नजात का दिन है।
तेरे लिए यही मौका है, आज ही तेरे लिए मौका है कि तू नजात पा, अंधेरे से, तारीकी में से तू नूर में आ, तू रोशनी में आ, तेरी जिंदगी बदल जाएगी, तू भी नजात का वारिस बनेगा और खुदा की हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो जाएगा। अगर तू दाखिल नहीं होगा, अगर लोग यीशुआ को इनकार करेंगे, इकरार करने से इकरार नहीं करेंगे या बल्कि इनकार करेंगे, तो उनको क्या होता है? 1 Thessalonians chapter 5 verse 9, 1 Thessalonians chapter 5 verse 9, क्योंकि खुदा ने हमें गजब के लिए नहीं बल्कि इसलिए मुकर्रर किया है कि हम अपने खुदावंद यीशुआ माशिया के वसीले से नजात हासिल करें। यीशुआ के जरिए से अगर हम नजात नहीं हासिल करेंगे तो क्या होता है? खुदा का गजब इस दुनिया में आएगा, और जब खुदा का गजब इस दुनिया में आएगा तो लोगों को क्या होता है? लोग हलाक हो जाएंगे, लोग हलाक हो जाएंगे। उस दिन लोग मातम करेंगे, रोएंगे, छाती पीट पीट कर रोएंगे, बहुत तड़पेंगे, लेकिन उस दिन उनको नजात नहीं मिलती। फिलिपियंस चैप्टर 1 वर्स 28, और किसी बात में मुखालिफों से दहशत नहीं खाते, ये उनके लिए हलाकत का साफ निशाना है, लेकिन तुम्हारे नजात का और ये खुदा की तरफ से है। क्या लिखा हुआ है? उनके लिए हलाकत का साफ निशान है। अगर एक इंसान यीशुआ पर ईमान नहीं लाएगा तो उसे क्या होगा? वो हलाक हो जाएगा, वो हलाक हो जाएगा, हमेशा के लिए वो नेस्तो नाबूद हो जाएगा, मिट जाएगा और जहन्नम में पहुंच जाएगा और अब्दुल्लाबाद तक रोते रहेगा कि क्यों मैंने यहोवा खुदा के बेटे को, जिसने यहोवा खुदा ने इस दुनिया में मेरे वास्ते मसलूब होने के लिए भेजा है, उसे मैंने क्यों इकरार नहीं किया, इनकार क्यों किया, तर्क क्यों किया? लेकिन उस वक्त नजात नहीं मिलती। आखिर में हम एक बात देखेंगे और ख़त्म करेंगे। अगर आप नजात याफ्ते हैं, अगर आप नजात पा चुके हैं, तो खुदा आपसे क्या कहता है? खुदा क्या कहता है? अमाल की किताब एक्ट चैप्टर 2 वर्स 40, एक्ट्स 2 और वर्स 40, और उसने और बहुत सी बातें जता जता कर उन्हें ये नसीहत की कि अपने आप को इस टेढ़ी कौम से बचाओ। खुदा क्या कहता है? दुनिया से बचकर रहना, क्योंकि दुनिया कैसी है? टेढ़ी है, टेढ़ी है। दुनिया से बचकर रहना, टेढ़ी दुनिया से बचकर रहना। अजीजों, अब हम अपने आप को जांचेंगे, परखेंगे। क्या हम कैसे हैं? क्या हम इस टेढ़ी दुनिया से बचकर रह रहे हैं या दुनिया के साथ शामिल हो चुके हैं? अगर हमारी जिंदगी में कहीं गुनाह है तो हम उसे इकरार करेंगे। अगर हम यीशुआ को अब तक कबूल नहीं किया तो उसे पहले कबूल करेंगे और उसके बाद उसकी मेज में हाथ डालेंगे। अगर हमारी जिंदगी में खोट है, गुनाह है, खता है, ऐब है, या कुछ जिल्लत की बात है या जलील बात है, नापाक बात है, अगर ऐसी बातें हैं, अगर हमारी जिंदगी ऐबी बन गई है, तो हम उसे इकरार करेंगे, हमारे गुनाहों को छोड़ेंगे और यीशुआ से दुआ मांगेंगे कि यीशुआ आपके सलीबी खून में मुझे धोकर पाक व नेक बना दीजिए और मुझे नजात बख्शे करके मुझे नेक व पाक कर दीजिए करके यीशुआ से दुआ मांग कर हमारे गुनाहों को छोड़कर उन्हें तर्क करके उनसे नफरत करते हुए उसके बाद यीशुआ की मेज में हम हाथ डालेंगे। अजीजों, हम घुटने टेकेंगे, विल गो ऑन टू आवर नीज नाउ एंड वी विल take part in the Lord's table, examining ourselves.